Good morning, students. Yesterday, you all did a great job while solving the questions of unit number 2. So, well done. Today, we will be starting with unit number 3, nouns, number, and gender of your grammar book. Children's nouns हमने पढ़ा है सेकेंड क्लास में क्या होता है, राइट? Nouns are the naming words. They name a person, a place, an animal or a thing. Examples could be sun, river, bottle, chair, charger, door, books, light, etc. Now, nouns can be either singular or plural. मतलब हिंदी में हम पढ़ते हैं हिंदी में भी हम पढ़ते हैं कि सिंगुलर होता है या फिर प्लूरल होता है, राइट? वैसे ही इंग्लिश में भी वी हैव सिंगुलर एंड प्लूरल. सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ बॉय. अ बॉय इज़ अ सिंगुलर and boys are more than one. That means they are plural. Okay, so when we add s to the word boy, it becomes plural. If this is singular, then boys is plural. This is one and this is more than one. That is 1 plus, right? So this is plural. And this is singular. So children, today we will actually be learning कि हम किसी भी नाउन का सिंगुलर या फिर प्लूरल कैसे बना सकते हैं, क्योंकि या तो क्वेश्चन में हमें सिंगुलर नाउन दिया होगा या फिर हमें प्लूरल नाउन दिया होगा, जिसको हमें चेंज करना होगा आइदर इन सिंगुलर और प्लूरल रिस्पेक्टिवली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हियर फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन. इसमें आपको नाउन को अंडरलाइन करना है. We will always keep in mind that noun is the name of something. वो naming words होते हैं. Alright, let's underline the naming words. So naming word here is Jasmine. See, in the first sentence here, the question is underline the nouns in the following sentences. And nouns are naming words. Okay, so Jasmine is the name of the flower. Alright, now as this is called a flower, so flower will also be a noun. Then the lion. Lion is the name of an animal. That's why it will be a noun. Again, animal will also be a noun, क्योंकि ये हमें एक टाइप के लिविंग बीइंग के बारे में बताएगा, राइट? वी हैव इंसेक्ट्स डिफरेंट, एनिमल्स डिफरेंट, ह्यूमन बीइंग्स डिफरेंट. हम सब लिविंग बीइंग्स हैं, लेकिन एनिमल्स आर डिफरेंट from insects are different from human beings, right? So that's why animal will also be a noun. The next one, this question is tough. Now see, यहाँ पे this will be your noun. How? Because this is telling you about some particular sentence here. Okay, that this is the thing which is tough. So it is telling you that ये है वो चीज़, right? So it is naming that thing, correct? That's why this will be your noun here. Fourth, Parth goes to school by van. Now Parth is a name of a boy. That's why it will be a noun. Goes to school. Now school is the name of the building where he is going, right? It is a specific type of building, right? जहाँ पे टीचर्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, वो लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं. That's why we will also call school a noun, because it is naming a particular type of building where a certain work is done. Okay? Similarly, butterflies and wings. Okay? How? बटरफ्लाई एक पर्टिकुलर टाइप का इंसेक्ट होता है, इसीलिए हम बटरफ्लाई को अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि वो एक नाउन है, राइट? एंड विंग्स को क्यों करेंगे?
क्योंकि वो बता रहा है कि उसका यही बॉडी पार्ट, वो उस बॉडी पार्ट को नेम कर रहा है कि बटरफ्लाई में तो बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसके एंटीनास होते हैं, विंग्स होते हैं, उसकी बॉडी होती है, उसकी आइज़ होती है, माउथ होता है, राइट? सो हियर द विंग्स इज़ अ वर्ड विच इज़ टेलिंग यू द स्पेसिफिक नेम ऑफ द बॉडी पार्ट जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है, तो इसीलिए वो भी एक नाउन होगा. ओके, सी, cows and milk. Cow is the name of the animal and milk is the name of the product which cow is giving us, correct? So that's why milk will also be a noun. The chocolates are on the shelf. Chocolate किसी प्रोडक्ट का नाम है and shelf. Why? Shelf उस जगह का नाम है जहाँ पे वो रखा है, correct? That's why chocolates and shelf, both of them will be nouns. Aditya lives in Bengaluru. Aditya is the name of the person, that's why Aditya will be a noun. And Bengaluru is the name of the place, that's why it will be a noun as well. So now children, हमने क्या देखा इन 8 sentences में कि nouns क्या होते हैं, हमने रिवाइज किया, करेक्ट? सी, nouns can be name of a place. अब वो प्लेस एक शेल्फ भी हो सकता है और एक सिटी भी हो सकता है, ठीक है? कुड बी नेम ऑफ अ प्रोडक्ट, जैसे कि चॉकलेट भी हो सकता है और मिल्क भी हो सकता है. देन द नाउन कैन ऑल्सो बी द नेम ऑफ अ बॉडी पार्ट, जैसे कि विंग्स भी हो सकता है और बस दिस इज़ द ओनली एग्जाम्पल हियर. देन इट कुड बी द नेम ऑफ अ थिंग. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने मिल्क पढ़ा था और चॉकलेट पढ़ा था, वैसे ही सी दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल हियर. इट कुड बी द नेम ऑफ एन एनिमल, cows and lion. Could be the name of a flower, jasmine. Could be the name of a person, Parth. Could be the name of an insect, butterfly. Or could be the name of anything, like a building, like an animal, like a flower, or like a human being. Alright, so always keep in mind that nouns are naming words. Alright, let's go to the next topic here. Name the following. Children, this is a very simple exercise here. Second one, यहाँ पे आपको नेम करना है. अभी हमने नेमिंग वर्ड्स पढ़ा था, अभी आपको यहाँ पे उसी का एक्सरसाइज करना है. आपको यहाँ पे 2 गेम्स को नेम करना है. नेम द फॉलोइंग. नेम एनी 2 गेम्स, दैट मीन्स किसी भी 2 गेम्स का नाम बताइए. नेम एनी 2 पार्ट्स ऑफ बॉडी. 2 पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी कि पार्ट्स ऑफ बॉडी में से भी किसी आपको 2 का नेम बताना है. 2 cities, 2 utensils. यूटेंसिल्स आर, जिसमें हम खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, वो यूटेंसिल्स होते हैं. एनी 2 means of transport. We all know what are means of transport, right? Any 2 flowers. हमें सबको पता है flowers क्या होते हैं. So we have to name 2 flowers. Okay? Let's go to the next page now. Okay. Fill in the blanks with suitable nouns from the cloud. यहाँ पे children आपको इस cloud में, ये देखो cloud है ना यहाँ पे, इसमें कुछ words दिए हैं, ये आपको नीचे दिए गए blanks में fill करने हैं. Okay? Suitable का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे. Children, we will be doing this course very slowly ताकि आप लोग को सब कुछ समझ में आए, आपका कोई कंसेप्ट पीछे ना रहे. अगर आपने इंग्लिश में एक भी कंसेप्ट मिस कर दिया तो आप सही से सेंटेंस नहीं बना पाएंगे एंड सर्टनली उसके रिज़ल्ट में आप कभी भी इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाएंगे, ना लिख पाएंगे. सो लेट्स डू द बेसिक्स वेरी नाइसली एंड वेरी क्लियरली. ऑलराइट? ओके, सो फिल इन द ब्लैंक्स. ब्लैंक का क्या मतलब होता है? ब्लैंक मतलब खाली जगह. ओके, ब्लैंक विथ सूटेबल नाउन्स. सूटेबल का क्या मतलब होता है चिल्ड्रन? सूटेबल मतलब विच सूट्स द बेस्ट. हम कहते हैं ना हमें ये खाना सूट नहीं करता या हमें ये कलर सूट नहीं करता, दैट मीन्स अच्छा नहीं लगता. तो जो आपको सूट करता है वो आपको अच्छा लगता है. सो दैट मीन्स यहाँ पे आपको वो नाउन्स फिल करने हैं जो इन सेंटेंसेस के हिसाब से सबसे सही होंगे.
ऑलराइट, आई विल डू 1 फॉर यू एंड बाकी के 4-5 आप अपने होमवर्क के लिए करेंगे. ओके, द डॉक्टर गेव हिम. डॉक्टर हमें क्या दे सकता है? वाटर दे सकता है, बर्ड दे सकता है, प्रिंस दे सकता है, अर्थ, बुक्स या फिर मेडिसिन. कौन सा सबसे सही है यहाँ के लिए? मेडिसिन. इसीलिए हम यहाँ पे मेडिसिन लिखेंगे. और चिल्ड्रन, मेडिसिन भी एक नाउन है क्योंकि वो आपको एक पर्टिकुलर तरीके के प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है. दैट्स व्हाई मेडिसिन इज ऑल्सो अ नाउन. ओके, लेट्स सी. आगे पढ़ते हैं. लुक एट दिस ग्रीन बॉक्स चिल्ड्रन, जहाँ पे ये कैटरपिलर बना है. यहाँ पे देखिए, ऐसे जितने भी बॉक्सेस हैं आपकी बुक में वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इसमें मेन टिप्स दी होती हैं जो आपको याद रखनी होती हैं. तो अगर आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे, अब सबसे पहले ये ग्रीन बॉक्सेस देखेंगे. ओके ओके, लेट्स रीड दिस वन. सिंगुलर एंड प्लूरल nouns. Student, you know that a noun standing for one person, place, animal or thing is called singular noun. Children, आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी कि जो भी किसी एक पर्सन, एक प्लेस, एक एनिमल या एक थिंग के लिए होता है उसको हम सिंगुलर नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फ्लावर, चेयर, वॉच, की, फेरी, child and ox. A noun standing for many persons, place, animal or thing is called a plural noun. For example, flowers, chairs, watches, keys, fairies, children, oxen. Now children, you will see that यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आई विल जस्ट जूम इन टू द स्क्रीन. नाउ सी, ये देखो, फ्लावर है सिंगुलर और फ्लावर्स है प्लूरल, जिसमें देखो फ्लावर में एस लगाया तो प्लूरल बन गया. चेयर में यहाँ पे देखो एस लगाया तो प्लूरल बन गया. वॉच में हमने ई एस लगाया तो प्लूरल बना. की में हमने सिर्फ एस लगाया तो प्लूरल बना. राइट वैसे ही फेरी में देखिए, फेरी में हमने आई ई एस लगाया, वाई को हमने हटा दिया यहाँ से और आई ई एस लगा दिया. और चाइल्ड में, चाइल्ड क्या होता है? वन सिंगल चाइल्ड. ओके, एंड चिल्ड्रन क्या होते हैं? बहुत सारे चाइल्ड को हम साथ में चिल्ड्रन कहते हैं. हम चाइल्ड्स नहीं कहेंगे. CHILDS विल बी अ रॉन्ग वर्ड. हमने देखो चाइल्ड के आगे REN लगा दिया, ठीक है, और वो चिल्ड्रन बन गया, प्लूरल बन गया. करेक्ट. वैसे ही हमने ऑक्स के आगे EN लगाया और वो ऑक्सन बन गया, यानी कि बहुत सारे ऑक्स बन गए. ओके, लेट्स सी. So children, these are some rules which we have to follow to make singular into plural nouns. Alright, अभी हम देखेंगे कि क्या क्या रूल्स होते हैं सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए. ओके, लेट्स सी. कुछ वर्ड्स होते हैं चिल्ड्रन जिसमें हम एस लगाते हैं. सॉरी. ओके, फॉर एग्जाम्पल, बुक एंड बुक्स, चेयर एंड चेयर्स, teacher, teachers, school, schools, window, windows, house, houses. Now children, आज हम इतना ही करेंगे. आज हम सिर्फ नाउन्स का ही रिविजन करेंगे. आज हमने एक इंट्रोडक्शन लिया कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है और हम उनको कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए, हमने चेंज करके भी देखा थोड़ा सा. टुमारो इन डिटेल आई विल एक्सप्लेन यू कि हम सिंगुलर को प्लूरल में कैसे बदल सकते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें दिमाग में रखनी चाहिए. इससे पहले मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ. आपको ये वाला एक्सरसाइज करना है और सेकंड नंबर एक्सरसाइज करना है ऑन पेज नंबर 10. पेज नंबर 10 पे आपको एक्सरसाइज जो है वो करना है और पेज नंबर 11 पे जो एक्सरसाइज है वो करना है.
आपको इसके साथ साथ एक चीज़ करनी है, दैट यू हैव टू search for something called syllables. ओके आपको syllables सर्च करना है ऑनलाइन, वीडियो में देखना है जाके, यूट्यूब पे आप सर्च करिएगा syllables और आप syllables के ऊपर वीडियो देखिएगा 2-3. ओके और कल हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे along with singular and plural. syllables जब तक आपको नहीं पता होंगे आप singular plural नहीं कर पाएंगे. Okay, so all the best for tomorrow. Let's learn something new tomorrow, and let's all meet with syllables and nouns and try to change them into singular and plural. Okay children, that's it for today. Any confusion you can please post in the group. Thank you so much.